ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗेट ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? तो ये दिखाते हैं कि देखो हमने जाट की पिटाई कर दी तो बाकी लोगों की हमें वोट मिल जाएगी। इस थ्योरी पे ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं मालूम, बाकी बिरादरियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जाट को इन्होंने गिरा लिया या जाट को काबू कर लिया तो उसके बाद नंबर आप ही लोगों का आना है। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਟ ਕਬੀਲਾ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਐਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। हम सिख धर्म की तरफ चल पड़ेंगे क्योंकि सिख धर्म में ऑलरेडी हमारे जो जट भाई हैं वो वहां पर हैं कि साहब जाट जो है बेशक जो है रूरल एरिया से आता है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और जब जब जाट को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो जाट ने धर्म तक बदल लिया है। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਟ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟਿਲ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ। इनके मन में जो नफरत है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। कमांड कंट्रोल में हिंदुत्व धर्म के सवर्ण जातियां हैं, उनके मन में हमारे प्रति बहुत भयंकर नफरत है। तो ये अब खाई इतनी बड़ी बन गई है कि इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होने का कोई संभावना नहीं है। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਾਟ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ, 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਟ ਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਆਈਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ किस्म ਦੇ फैसले ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? देखिए जो खाप पंचायतें हैं वो पूरे नॉर्थ इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे शहरी क्षेत्रों में एक एसोसिएशंस होती हैं, इसी तरह के ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। राज दिल्ली पर या उन क्षेत्रीय ताकतों में किसी का रहा हो, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको गवर्न करने के लिए समझिए, आपसी फैसले के लिए, सामूहिक फैसले के लिए यदि कोई बड़ी मुसीबत आ जाए या जो है आपसी भाईचारा बनाने के लिए ये खापों का एक सिस्टम, पंचायती सिस्टम जो है हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में ये सभी जगह रहा है। और जो मैंने थोड़ा-सा स्टडी सिख हिस्ट्री की भी की है, उसमें भी जो सिखों में मिसल्स थी, हैं? तो वो भी जब आप या उनकी जो मिलिट्री माइट थी, जो फ़ौजें थी, उनका कंट्रोल भी कहीं न कहीं ऐसी छोटी-छोटी पंचायतों में, ये पंचायत का मतलब होता है 5 बंदे। तो 5 बंदे डिसाइड करते थे, तो वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो सबको साथ लेकर के 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलता है और सबकी भलाई के लिए काम करता है। तो ये ऐतिहासिक रूप से एक इन्फॉर्मल बॉडीज़ हैं और जो है समाज के हक में फैसला लगातार करती चली आ रही हैं। समाज की रक्षा करने से लेकर के उनके हक में फैसला लेना हो या किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करनी हो ताकि जनमत बनाया जा सके और आगे एक्शन लिया जा सके या अभी के टाइम में या पहले पॉलिटिकल फैसले भी वो लिया करते थे कि भाई हमने इसका साथ देना है, इसका साथ नहीं देना है और लड़ाइयों में भी वो लोग अपने लोगों को भेजते थे। तो इस तरह का एक सिस्टम इन्फॉर्मल जो है यहाँ पर बना हुआ है। जब ये डेमोक्रेसी तो बाद में आई या देश की सीमाएँ बाद में बनी, उससे पहले ही ये सिस्टम यहाँ बना हुआ है। बड़ा अच्छा सिस्टम है ये, जिसके माध्यम से लोकलाइज़्ड जो गवर्नेंस होती है, वो जो है चलती रहती है, लेकिन ये इन्फॉर्मल है। इसकी कोई ये नहीं होता है कि इसने कुछ कह दिया तो वो कोई कानूनन बाध्य हो गया कोई, लेकिन इसकी राय-मशवरा ही अपने आप में एक मोरल बाइंडिंग क्रिएट करता है समाज के ऊपर। तो ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम लंबे समय से चला आ रहा है। जी। ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਰਾਖਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ, ਉਤਪੀੜਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखिए, पिछले 10-12 साल से जाट ये महसूस कर रहे हैं कि जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, विशेषकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भाजपा हो, ये सारे देश के ऊपर अपने हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को लादना चाहती है और उसके माध्यम से सत्ता पे काबिज होना चाहती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो जाट ही है, क्योंकि जाट कभी भी इस तरीके से हिंदुत्ववादी कभी भी रहा नहीं। ना ही जो है वो बहुत ज़्यादा पाखंड में या इनके कर्म कांडों में उसमें जो है शामिल रहा है। वो शांति से रहने वाली कौम है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जो है वो हथियार भी उठाने वाली कौम रही है। तो ये 2010 के बाद ही सबसे पहले तो मुद्दा आया कि भई पढ़ाई में और सरकारी नौकरियों में हम हो जाएँ, इसलिए 2014 में कांग्रेस की सरकार ने हमें आरक्षण दिया था, रिज़र्वेशन ओबीसी कैटेगरी में। वो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि 14 में सरकार मोदी सरकार आ गई, योजनाबद्ध तरीके से लचर पैरवी करके और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको खारिज करा दिया। और उसके बाद जब वो खारिज हुआ 2015 में, तो मोदी साहब ने अपने यहाँ पर जाटों के अलग-अलग जो है 4-5 राज्यों से जाटों को बुलाया और उनको अपने घर पर मीटिंग में आश्वासन दिया कि हम जाटों को आरक्षण देंगे। मैं जब हरियाणा का प्रभारी होता था, पहले होते थे वो हरियाणा के प्रभारी 90s लेट 90s में, तो तब मैं जाटों के यहाँ ठहरता था, हम जाटों मैंने आपका नमक खाया है, इस तरह की बातें उन्होंने कही कि जाटों को आरक्षण मैं दूँगा। लेकिन जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया। उल्टे 2016 में इसके विरोध में जब आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ, विशेषकर हरियाणा में, तो जाटों के लगभग 2.5 दर्जन बच्चों को डायरेक्ट गोली मार करके शहीद कर दिया गया
तो वो एक बहुत बड़ी पीड़ा इसलिए है हमारे मन में कि एक तो हमें शहीद किया गया, हमें बदनाम किया गया, हमारे आंदोलन को भी एक मुरथल रेप कांड जो फर्जी जो कुछ था ही नहीं उस आंदोलन के दौरान इजाद करके और मीडिया में बदनाम किया गया। और जाटों के बच्चे सरकारी नौकरी में ना आ सकें, पढ़ाई के अच्छे क्षेत्रों में ना आ सकें, वो आरक्षण जो है बंद कर दिया और आज तक उस आरक्षण को नहीं दिया। इसके बाद जो है किसान आंदोलन में हमारी जमीनों को छीनने का के मकसद से और हमारी जो क्योंकि खेती में भी जाट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस देश में निभाते हैं और जाटों ने 1960 के दशक में इस देश का पेट भरने का काम किया जब भुखमरी फैली हुई थी यहाँ देश में। तब ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो या राजस्थान के कुछ हिस्से हो, तो उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से जो देश की ग्रेनरी को भरने का हम लोगों ने काम किया। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई दिल्ली के आसपास की जो जमीनें हैं, जहां पर जाट मुख्य रूप से बसते हैं, जो राज्य मैंने बताए, बड़ी कीमती जमीनें हैं। तो इन्होंने कहा कि जाटों को धीरे-धीरे खेती से हटाना है, खेती की जमीन के ऊपर कब्जा करना है। इस नियत से ये 3 कृषि कानून जो है, जो लाए गए थे, जिसके खिलाफ 2020-21 में जो है दिल्ली घेरने का काम किसानों ने किया था। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। इसके अलावा उसमें भी जब आंदोलन हुआ तो आपने देखा होगा, आप याद होगा कि भाई 13 महीने तक हम लोग सब दिल्ली घेर करके जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जाट सारे के सारे थे, सिख भाई भी अपने साथ थे। सारे के सारे दिल्ली को घेर के बैठे रहे। उसमें 750 किसानों की शहीदी हो गई बैठे-बैठे, लेकिन इन्होंने नहीं सुनवाई करी। अत्याचार तरह-तरह के किए। उनके ऊपर जो है जो कील ठोक दी और बैरिकेड लगा दिए। बहुत ज़्यादा उसमें जो है उत्पीड़न जो है जाटों का किया, उनको बदनाम किया गया कि ये फॉरेन फंडिंग है, कभी इनको खालिस्तानी, कभी पाकिस्तान से, इस तरह की बातें कही गई। और उसी आंदोलन के दौरान जब लखीमपुर खीरी यूपी में जिला पड़ता है, वहां पर एक आंदोलन चल रहा था, तो इनके एक मंत्री के बेटे ने सरेआम जीप से 5 किसानों को जो है कुचल दिया। तो ये ऐसा कभी भी देश में नहीं हुआ था। तो जाटों का या किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए ये किया गया, क्योंकि हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा विरोध या जो है रोड़ा वो जाट ही है। तो ये हुआ। इसके बाद इन्होंने जो है जो हमारा महिला पहलवान बेटियां थी, मुख्य रूप से जाटों की फैमिली से ही आती थी, क्योंकि खेलों में भी हम लोग देश का नाम ऊंचा करते रहे हैं मेडल जीत करके। तो इन्होंने, इनका जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो खेती जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, वो 10 साल से लगातार हमारी बेटियों का यौन शोषण कर रहा था। और जब उसके खिलाफ शिकायत की गई तो इन्होंने कोई उसका संज्ञान नहीं लिया। इवन प्रधानमंत्री से डायरेक्टली शिकायत की, जो विनेश फोगाट है, उन्होंने शिकायत की थी। उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। तो वो आंदोलन पे बैठने के लिए पिछले साल मजबूर हुई। और जब वो आंदोलन पे बैठी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई। और लेकिन उस आंदोलन को भी कुचलने का और किस तरीके से बेटियों को घसीटा गया, उनके मुंह पे बूट रखे गए, वो सारे देश ने जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली में देखा। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई खेलों में इनका वर्चस्व खत्म करना है, खेती में वर्चस्व खत्म करना है, इनका पढ़ाई में आरक्षण के माध्यम से आरक्षण ना दे के खत्म करना है। तो एक फौज का जो एवेन्यू है हमारा, फौज में हम लोग चले जाते हैं और चाहे सिख भाई हो या जाट हो, तो प्रमुखता से फौज में पहले से ही रहे हैं। देश की रक्षा करने के लिए बलिदान होने वाली कौम ही रही है। तो वो एवेन्यू बंद करने के लिए इन्होंने अग्निवीर एक योजना लिया है, जिसमें 4 साल की भर्ती की योजना है कि भाई 4 साल बाद बंदा रिटायर होकर के घर चला जाए। वो भी हम ही लोगों की ताकत को खत्म करने के लिए किया गया। तो ये तमाम चीजें, और अंततः जब अभी हरियाणा का चुनाव आया तो इन्होंने एक जाट गैर जाट, जाट एक तरफ हो जाओ और 35 बिरादरियां बाकी तरफ हो जाओ और 35 बिरादरियां मिलके जाटों को हराओ, ये नैरेटिव, जिसको 35 बनाम एक कहते हैं, या जाट नॉन जाट या जाट बनाम गैर जाट ये कहते हैं। तो ये इन्होंने करने का काम किया, जो कि अगर आप देखें तो ये एक नस्ल भेद हमारे साथ हो रहा है इस देश के अंदर। ये तमाम अत्याचार जब हमने देखे, और उसके अलावा चुनाव जो ये जीते, ये बेईमानी करके जीते सरेआम। अभी आपने कल ही रिजल्ट आया है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में भी इन्होंने मराठे वर्सेस गैर मराठे कर दिया। इसी तरीके से यूपी में यादव वर्सेस गैर यादव कर देते हैं। तो ये प्रमुख जातियां जो इनसे लड़ सकती हैं, इनके साथ संघर्ष कर सकती हैं, इनके हिंदुत्व वाले प्रोजेक्ट पे जो है अंकुश लगा सकती हैं या उसको रोक सकती हैं, उनके खिलाफ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम उत्पीड़न जब हमारे हुए,
तब हमने सोचा कि भाई जब आप कह ही रहे हो कि जाट बनाम गैर जाट, जाट एक तरफ है और बाकी जातियां एक तरफ हैं, हिंदू जाटों की विशेषकर मैं बात करूं, तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारा एक जाटलैंड अलग बना दीजिए और हम सिख धर्म की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि सिख धर्म में ऑलरेडी हमारे जो जट भाई हैं वो वहां पर हैं। और इसके बारे में मैंने चौधरी चरण सिंह जी का जी एक लेटर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जाटों को जब भी नीचा दिखाया गया, तो एक बार 1958 में चौधरी चरण सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो नेहरू जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने नेहरू जी ने उनको कुछ हल्की बात कहते हुए कह दिया था कि भाई आप जरा अपना जाटपना मत दिखाया करो। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, ये 6 अक्टूबर 1958 को, ये मेरे पास है। इसमें उन्होंने क्लियर बताया कि साहब जाट जो है बेशक जो है रूरल एरिया से आता है, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, और जब जब जाट को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो जाट ने धर्म तक बदल लिया है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई ये मैं पढ़ रहा हूँ अंग्रेजी में, सो दे वुड नॉट पुट अप, they are uneducated, live in villages, have no pull in the public, economic or administrative life of the country, and yet would not reconcile themselves to an inferior position in the society. So they would not put up with the taunt of being a Jat that the term in influential urban circles has come to signify. With the result that 56% of Hindu Jats in the Punjab, ये बात कर रहे हैं जॉइंट पंजाब की, जो पाकिस्तान वाला और अपना पंजाब था, with the result that 56% of the Hindu Jats in the Punjab within a short period of 40 years, आगे लिखा है 1891 to 1931, left their old faith to turn Sikhs or Muslim so that nobody could any longer treat them with contempt. This desertion or conversion contributed largely to the creation of Pakistan and is contributing largely to, आगे उन्होंने बताया। तो मतलब कहने का ये है कि हिंदी में आपके दर्शकों के लिए इन्होंने क्लियर कहा है कि जाटों को जब भी नीचा दिखाने की समाज ने कोशिश की हो या उनको बेइज्जत करने की, अपमानित करने की कोशिश की, तो उन्होंने धर्म बदला है। और 56% जाटों ने धर्म अपना बदला, इस चिट्ठी के मुताबिक जो चौधरी चरण सिंह जी की नेहरू जी को लिखी हुई सन 58 की चिट्ठी मैंने बताई। और 56% जाट जो है ज्वाइंट पंजाब के सिखिज्म में या हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में चले गए, और ये बहुत बड़ा कारण बना पाकिस्तान बनने का भी। ये बात उन्होंने कही है, तो ऐतिहासिक ये तथ्य मैंने दर्शकों के सामने रखा है। तो इसलिए हमने 2 मांगे इसमें उठाई है, एक जाटलैंड की, हमारा जो है एक अलग जाटलैंड ऑटोनोमस क्षेत्र के रूप में, हम कह रहे हैं जाट्स ऑटोनोमस जो है टेरिटरी JAT, तो जाटलैंड हमारा दे दिया जाए, जिसमें वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के 2-4 जो दक्षिण वाले जिले हैं उनको छोड़ करके, और हम लोग जो है इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार हो, और हम लोग सिखिज्म की तरफ जो है मास लेवल पे मूवमेंट करें, ये हमारा जो है विजन है जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੱਟਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਸਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਈਵਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ?
नहीं, मैंने जैसा बताया कि पिछले 10-12 साल से लगातार टारगेटेड तरीके से हिंदू जाटों को जो है मार्जिनलाइज किया गया है। उन्हें आर्थिक रूप से, उन्हें सामाजिक रूप से, उन्हें राजनीतिक रूप से, या खेल के मैदान में वो मेडल जीत रहे हैं तो इस तरीके से आपने देखा विनेश फोगाट का 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट निकला आया था अभी पेरिस ओलंपिक में, तो कितनी ज्यादा जो है खुशी, और उसको मेडल नहीं मिला तो कितनी ज्यादा खुशी संघियों ने सोशल मीडिया पे जाहिर की। और बेटियों को कुचलने का काम इनका सांसद करता रहा, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो जाटों को तो मार्जिनलाइज ये लगातार कर ही रहे हैं। इसके विषय में इनके एक सांसद ने 7-8 साल पहले बाकायदा शपथ दिलाई थी लोगों को इकट्ठा कर करके, रोशन लाल आर्य उसका नाम है, और कि भाई जाटों को अलग थलग कर दो, जाटों से कोई सामान मत खरीदो, जाटों को राम राम करना, नमस्कार करना बंद कर दो, ये सारी चीजें हैं। और अगर आप कहें तो मैं वो 2 मिनट की एक है, मैं वो वीडियो जो है आपको इसमें अभी सामने दिखा सकता हूँ। इसमें ऑडियो कम से कम लोगों को समझ में आ जाएगा, तो ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इस बिरादरी की एकता को कायम रखूंगा। जाट समाज के लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक संबंध नहीं रखूंगा। किसी भी जाट से नमस्ते नहीं करूंगा, किसी भी जाट की नमस्ते नहीं लूंगा, किसी की जात की दुकान पर सामान नहीं लूंगा, दुकान से किसी जाट को सामान नहीं दूंगा। कहीं भी जात का पता लगने पर उससे एकदम मुंह मोड़ूंगा, और मौका लगते ही जाट को कान पकड़ने की अपील करूंगा। मैं प्रतिदिन एक रोटी कुत्ते को डालूंगा, एक रोटी कौवे को डालूंगा, ताकि छत पर और गली में भी जाटों की नाश की कामना की जा सके। मैं जाट जाति के नाश के लिए दिन में 5 बार 5 मिनट भगवान से प्रार्थना करूंगा। एक भस्मासुर को, नरकासुर को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण कृपा करें, फिर राम कृपा करें, भगवान कृपा करें, तो भगवान कृपा करें, हनुमान जी की गदा काम करे इनके ऊपर पड़े। जय हिंद। जी में क्या है, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, और मुकदमा, लेकिन बाद में इनका मुकदमा खत्म कर दिया गया। वास्तव में तो ये मैं लेकर के बैठा हूँ, ये इस तरह की जो हरकतें जाटों के साथ हो रही हैं, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की, उसमें 10 दिसंबर 1948 को पास हुआ था। उसका आर्टिकल 2 है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है इस लाइट में, कि everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion। आगे उसने और चीजें लिखी हैं। तो सब लोगों को जो है, अब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के उसमें आ रहा है कि एक आदमी खुलेआम, और ये पूर्व विधायक है, ये कोई वैसा आदमी नहीं है, ये पूर्व विधायक है, और इसने पूरा जा करके हर जगह, और फिर इसी चीज को अभी जब चुनाव आया, जब भी चुनाव आता है तो इसको ये बहुत ज्यादा प्रचारित करते हैं, ये वाला वीडियो, और इस तरह के वीडियोस की चर्चा करते हैं कि भाई जाटों का टोटल जो है आपको एलाइनेशन करना है, इनको अलग थलग करना है, उनको समाज से काट देना है, उनके ताकत को सबको खत्म कर देना। तो ये चीज प्रोजेक्ट चली हुई है। जी चौधरी ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਟੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? नहीं, जैसा मैंने बताया कि पॉलिटिकल ताकत जैसे 30% के आसपास जो है जाट हैं हरियाणा की अगर हम बात करें, और अगर उनको आइसोलेट करके या उनको प्रताड़ित करके उनको दंडित करके उनको पिछले 10 साल में आप देखना जहां भी किसान आंदोलन हुआ है वहां पर लगातार लाठीचार्ज करने का काम जी लगातार लाठीचार्ज करने का काम जो है हरियाणा सरकार उनके ऊपर करती रही। आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक शंभू बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर है, जो पंजाब से किसान आ रहे थे 13 फरवरी को 2024 को, उनको वहां रोका हुआ है। उनके ऊपर कितना जो है अत्याचार किया गया, आज भी वो वहां बैठे हुए हैं। तो ये दिखाते हैं कि देखो हमने जाट की पिटाई कर दी तो बाकी लोगों की हमें वोट मिल जाएगी। इस थ्योरी पे ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं मालूम, बाकी बिरादरियों के लिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जाट को इन्होंने गिरा लिया या जाट को काबू कर लिया तो उसके बाद नंबर आप ही लोगों का आना है, क्योंकि ये सत्ता केवल कुछ सवर्ण जो ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववादी फर्जी फोर्सेज हैं आरएसएस वाली, उन्हीं के हाथ में रहनी है। बाकी सब लोगों का इन्होंने शोषण करना है, तो इस चीज को इनको भी समझना चाहिए। तो ये जो चीजें चली आ रही हैं देश में, ये देश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हमने अपना जाटलैंड का जो है मांग उठाई है। और जाटलैंड के विषय में भी मेन थ्योरी हमारी ये है कि भाई जो हिंदू जाट हैं और जो सिख भाई हैं, उसमें भी सिख जाट हैं, सब लोग जो है एकजुट हो जाएं। और ये कोई मेरा पहली बार रखा हुआ प्रपोजल नहीं है, जो मैंने एक ये जाटलैंड द फाइनल सॉल्यूशन दिया है, इसकी हिस्टोरिकल ग्राउंडिंग है। उसके लिए मैं ये हिस्ट्री ऑफ द जाट्स है कानूनगो की, ये लगभग 100 साल पुरानी 1925 की किताब है। इसको मैं आपको बताता हूँ, ये कानूनगो की, इसको कोई नेट पे भी मंगा के जो है पढ़ सकता है। इसमें जो भरतपुर के हमारे महाराजा सूरजमल जी थे, जब 1761 में पानीपत की लड़ाई में मराठे हार गए अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस से, तो वो चले गए और उसके बाद जाट एक बड़ी फोर्स के रूप में नॉर्थ इंडिया में उभरे। तब उनका ये ड्रीम था और उनका कहना था कि भाई मैं ये चाहता हूं कि जो है ये नॉर्थ इंडिया में यहाँ से हिंदू और उधर से सिख भाई ये सब मिल करके और बड़ी एक ताकत बने, ये इनका सपना था। जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये 147 पेज पर मैं पढ़ रहा हूँ द जाट, पहले 146 पे है। ये इनका सपना ये था कि एक देयर शुड फर्स्ट टू इंटरपोज अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ ए जाट कन्फेडरेसी बिटवीन अब्दाली एंड द रोहिल्लास एक्सटेंडिंग फ्रॉम रावी टू द जमुना। तो ये रोहिल्ला थे यहाँ पर, जो अपना अभी बिजनौर है, मुरादाबाद है, ये जो एरिया है सारा रोहिलखंड बोलते हैं यूपी का, यहाँ पर रोहिल्ला जो है प्रमुख पावर थे। और उधर से अब्दाली के अटैक अफगानिस्तान से होते थे, उसको सिख झेलते थे सबसे पहले, और सिख उसका मुकाबला करते थे अहमद शाह अब्दाली का। इधर जाट इनसे लड़ते थे जो ये रोहिले थे। तो इन दोनों ताकतों का जो है इन दोनों ताकतों का सामना करने के लिए यदि सिख भाई और हिंदू जाट एक साथ हो जाएं तो इनका मुकाबला किया जा सकता है। ये सपना जो है महाराजा सूरजमल जी का सपना था। तो इन्होंने आगे कहा है कि भाई ये बहुत ही अच्छा इनका सपना था। हरियाणा में भी उन्होंने इसलिए अपने कदम बढ़ाए थे। हरियाणा के काफी रोहतक वगैरह सब इलाकों को महाराजा सूरजमल जी ने जीता। और इस किताब में इसने लिखा है कि ये दिस वाज अ मूव इन द राइट डायरेक्शन फॉर मोर रीजंस देन वन। The Jats of the Jamuna were being drawn as if by racial instinct towards the Jats of the 5 rivers. तो एक रेशियल इंस्टिंक्ट की वजह से जो यमुना के आसपास के जाट थे, यानी दोआबा में जो जाट थे, यानी वेस्टर्न यूपी के जाट थे, भरतपुर के आसपास के जाट थे, वो अपने पंजाब के भाइयों की तरफ जा रहे थे। रेशियल इंस्टिंक्ट थी, क्योंकि दोनों का रेस एक थी। आगे लिखते हैं, द टू ब्रांचेस ऑफ वन माइटी स्ट्रीम which had bifurcated at Sindh in the dim days of hoary antiquity now turned to meet again. तो ये जो दो बड़ी ब्रांच थी हमारी, वो दो हिस्सों में बड़ी थी, एक सिखों में और हिंदू जो है जाटों में। ये सारी की सारी जो महाराजा सूरजमल जी का ड्रीम था, इसको एकजुट करने का उनका सपना था। नाउ टर्न्ड टू मीट अगेन, मूव्ड बाय द इंपल्स ऑफ कॉमन ब्लड
क्यों ये एकजुट हो रहे थे? क्योंकि इनका ब्लड कॉमन था, इनकी रेस एक थी, एज वेल एज कॉमन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट। इनके रिलीजियस इंटरेस्ट और इनका जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक था। यही थ्योरी मैंने जो है अपने पेपर द जाटलैंड द फाइनल सॉल्यूशन में लिखी है 3R की, कि हम लोग एक रेस हैं, पहला R, दूसरा रीजन हमारा एक है, तीसरा रिलीजन भी हमें एक ही में जाना पड़ेगा जो सिखिज्म है, क्योंकि में हमारी पूरी बेइज्जती की जा रही है और सिखिज्म में हमारे पहले ही भाई बैठे हुए हैं, तो वहां हमें मूव करना चाहिए। तो ये कोई नया ड्रीम नहीं है, ये महाराजा सूरजमल जी का ड्रीम था, जिसको कानूनगो साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और इसका सीक्वेंस ये हुआ कि जब इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली 1763 में महाराजा सूरजमल जी की, तो इनके जो बेटे थे उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और इस चीज को लेकर के उन्होंने कई बार इनवाइट किया और सिख फोर्सेस ने आकर के मुगलों से, पठानों से सबसे लोहा लिया महाराजा जवाहर सिंह जी के साथ। और जब जब सिख और हिंदू जो है जाट एक साथ आए हैं, तब तक उन्होंने दिल्ली फतेह की है। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं। तो इसी ड्रीम को हमें दोबारा से ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा कि वेस्टर्न यूपी से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सारे के सारे जो इलाके हैं, ये सारे के सारे हमारा जो है जाटलैंड है। इस जाटलैंड में हमारा जो है एक ऑटोनोमस रीजन जो भारत के अंदर ही है, हम अलग से नहीं मांग रहे कि भाई अलग देश बनाना है, हमने कहा ऑटोनोमस रीजन। और ऑटोनोमस रीजन का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिड है, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि 10-12 ऑटोनोमस रीजन जैसे बोडोलैंड है, गोरखा हिल्स है, इस तरह के कई यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि ये ऑटोनोमस रीजन बने और जो है सारे के सारे जो हमारे भाई हैं वो सिख धर्म की तरफ मूव करें। तो रीजन, रेस, रीजन और रिलीजन जब हमारा एक जैसा हो जाएगा तो हमारी नस्लें सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएंगी और इनके हिंदुत्व वाली प्रोजेक्ट को हम जो है चैलेंज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। वरना जिस तरीके से ब्राह्मणवादी हिंदुत्व ने पहले बौद्ध धर्म को खत्म किया, जैनों को लगभग खत्म कर दिया, अब वो सिखों के भी पीछे लगे हुए हैं। तो सिक्खी वास्तव में खतरे में है। सिक्खी को बचाना है तो जाटों को वहां जाना पड़ेगा अपने भाइयों के साथ और दोनों को मिलकर के इस देश के संविधान को, इस देश की अखंडता को बचाना पड़ेगा। यही हमारा जो है सपना है जिसको लेकर हम आगे बढ़ जी ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੈਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾ ਔਰ ਅਨਟੱਚੇਬਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਟ ਆ, ਕੋਈ ਰਵੀਦਾਸੀਆ, ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਾਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਟਰਾਈਬ ਸੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਬੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਆ, ਜਾਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾਣ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ मैनेज करोगे सिक्खी च आने तो बाद? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, आज भी खेत में जब चाहे आप हिंदू जाटों की बात करें, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में,
खेत में जब जाट काम करते हैं, उनके साथ जो है बाकी जातियों के जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो काम करते हैं। उनकी मैं आपको बता दूं, मैं खुद जब खेतों में रोटी ले जाया करता था, हमारे दादाजी हल चलाते थे, तो वो वही रोटी उनको भी देते थे और साथ में ही बैठा करके खाना खाते थे। तो हमारा तो भाईचारा जो है सदियों से है और सदियों से रहेगा। हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं ऊंच नीच की, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इस चीज में बहुत ज्यादा कभी भी कंफर्टेबल खुद ही नहीं है जाट। जाट अपने आप में जो है एक रेस है अलग, और वो कभी भी इन चीजों को, ऊंच नीच को, भेदभाव को मानती नहीं है। वो बंदे को उसकी क्वालिटीज के अनुसार जो है जज करती है, या उसका जो है स्थान एक होता है। अदरवाइज वो सबको साथ लेकर के चलने वाली कौम है। और यही चीज जो जाटों को प्रभावित करती है कि सिख धर्म में भी ऊंच नीच नहीं है। सिख धर्म संभाव का, कुर्बानियों का, एक दूसरे को साथ लेके चलने का, सबकी सेवा करने का, और एक ही पंगत में सारे के सारे जो है बैठ करके जो है लंगर छकते हैं। तो ये सारी चीजें सिख धर्म की तरफ आकर्षित करती हैं। और जैसा मैंने बताया कि जिस धर्म में हम ऑलरेडी हैं, हम इसमें भी बहुत ज्यादा पूजा करना, उपासक होना, बार मंदिर जाना, यहाँ जाना, वो सब चीजें हमारे यहाँ भी नहीं है। हम तो गांव में 3 ईंट रख करके, हमारे जो खेत खेड़ा, ये हमारी फिलॉसफी रही है कि हम अपने पूर्वजों की, हम अपनी प्रकृति की, उसकी पूजा कर लेते हैं। और हम कोई बहुत ज्यादा मंदिर में जाने वाले, या ये तो कुछ 10-20 सालों से है, जब से संघ वेस्टर्न यूपी और यहाँ सारे जाट लैंड में घुसा है, तो इन्होंने जाटों के ऊपर ये इस तरह की चीजें लादी हैं। लेकिन ये नेचुरल नहीं है। कल भी मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां मुझे बताया, कई लोग मिले, उन्होंने बताया भाई मेरी पत्नी का नाम कौर है, पीछे कौर लगाती है, मेरी दादी कौर लगाती थी। तो हमारा और सिखों का तो भाईचारा बहुत पुराना है। और जैसा महाराजा सूरजमल के टाइम पर, और उनके बाद उनके बेटे राजा जवाहर सिंह जी के टाइम पर हुआ, सिखों ने और हिंदू जाटों ने अपने आप को रेस के अनुसार एकजुट करके बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, और सबको साथ लेकर के चले हैं। तो ये जो है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलरेडी हमारे काफी लोग यहाँ पर अमरोहा आप चले जाएं, गंगा क्रॉस करते ही, तो यहाँ पर योद्धे जाट उनको कहते हैं, उनके यहाँ पर गुरुद्वारे बने हुए हैं। चाहे वो पगड़ी या दाढ़ी ना रखते हो, लेकिन वो सामान्य रूप से, और उनकी शादियां, उनके सारे ट्रेडिशन, सारी जो फंक्शंस हैं, वो गुरुद्वारे के अनुसार और पाठ करके किया जाता है। तो ये बहुत हमारे लिए ट्रांजिशन डिफिकल्ट नहीं है। हम एक ही, जैसा कानून को साहब ने कहा, ये एक ही धारा थी जो 2 हिस्सों में बटी है। तो अब उस धारा को एकजुट करने का अब समय आ गया है। हमारा इलाका एक है, हमारी रेस एक है, हमारा रीजन एक है, और हमारा रिलीजन भी धीरे धीरे सिखिज्म की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि कल कोई सारे चले जाएंगे, लेकिन एक विचार बन रहा है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जी जी ਬਿਲਕੁਲ। ਆਇਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1875 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਟ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਾਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਹੋਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਟ ਕਬੀਲਾ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਐਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, 1935 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੋਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਮਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧਰਮ ਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ।
ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਲੀਅਮਸ ਨੇ, ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਕਬੀਲਾ ਵਾ ਉਹ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਟ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟਿਲ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ट्रांजिशन हो रही है, ਜਿਹੜਾ शिफ्ट आ रहा ਵਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ उत्पीड़न ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ, शोषण ਦੇ ਕਾਰਨ। नहीं देखिए, इसमें ऐसा है कि इनके मन में जो नफरत है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपने जो वीडियो देखे होंगे उनके नीचे के आप कमेंट्स पढ़ लें, और हम तो समाज में रहते हैं। जो कमांड कंट्रोल में हिंदुत्व धर्म के सवर्ण जातियां हैं उनके मन में हमारे प्रति बहुत भयंकर नफरत है, चाहे हमारे ही खिलाफ हमारी ही बेटियों का शोषण हो रहा है, और जो आदमी हंस रहा है ये नहीं कह सकता कि साहब कोई बात नहीं, इसने किया है तो इसको सजा मिलनी चाहिए। और बाकी जो चीजें मैंने डिटेल से बताई, तो ये अब खाई इतनी बड़ी बन गई है कि इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होने का कोई संभावना नहीं है, और मन में भेद है जो धीरे धीरे पल रहे थे, और आज से ही नहीं है, ये 10-15 साल की बात नहीं है। जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं उसमें कभी भी जाट फिट नहीं हो पाया, क्योंकि जाट अपने आप में, जो कानून गो की किताब भी मैंने आपको बताई, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये अलग रेस है, और ये कभी भी जो है हिंदुत्ववादी और उस तरह की फोर्सेस काबू में कभी नहीं आया। तो ये जो है आगे बढ़ने वाली ही बात इसमें है। और इसमें मैं आपको बता दूं 2 फैक्ट्स और। अभी मैं पिछले दिनों ज्यादा मैं जाता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूं मंदिरों में या कहीं, तो मैं गुरुद्वारे में अपने आप ही मुझे कुछ ऐसा लगा, एक मेरे इंडिया इस्लामिक सेंटर यहाँ पे दिल्ली में एक टॉक थी, तो वहां पर सर्वधर्म संभाव की जो है थी, तो उसमें मैं उससे पहले वहां पर गया गुरुद्वारे बंगला साहब, और ये जो निशान साहिब है, ये निशान साहिब वहां से हम लेकर के आए, और उसमें भी मैंने आप दिखाया कि साहब अब हमारे पास यही चारा बचता है कि हम लोग एकजुट हो जाएं और सिक्की की चादर के नीचे जाएं, तो कहीं से कहीं तक किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसमें टाइम लग सकता है, धीरे धीरे लोग कन्विंस हो रहे हैं, काफी लोगों के मेरे पास फोन आ चुके हैं कि हम लोग तैयार हैं, आप बताओ कब इसको जो है आगे किया जाए। हमने उनसे ये कहा है कि इसमें पहले जो है बड़ा एक जनमत हम तैयार करेंगे, लोगों को बताएंगे किस तरीके से सिख हमारे असली खून है। हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब जोड़ेगा, और पंजाब के ऊपर मुसीबत आएगी तो हम चलेंगे। तो सिख हमारा नेचुरल धर्म है, खेती किसानी का धर्म है, ये सब चीजें। और एक चीज और, जब मैं महाराजा सूरजमल जी की बात कर रहा हूँ, महाराजा सूरजमल जी का जब देहांत हो गया और धोखे से उनकी हत्या कर दी गई, तो उनका बदला लेने के लिए उनके बेटे महाराजा जो है जवाहर सिंह जी ने जब सिखों को बुलाया तो वहां पे अरदास हुई, और अरदास में ये कहा गया कि भाई जो जवाहर सिंह हैं, जो महाराजा सूरजमल जी के बेटे हैं और सच्चे बादशाह गुरु नानक साहब के सिख हैं, फॉलोअर हैं, ये अरदास में कहा गया। उन्होंने खालसा जी से जो है एक अपना मदद मांगी है, और ताकि वो अपने पिताजी के खून का बदला ले सके, तो हम इस मदद को देने को तैयार हैं। तो ये बातें उन्होंने उस टाइम भी कही। तो जो हमारे महाराजा जवाहर सिंह जी थे, सूरजमल जी के बेटे, उन्होंने गुरु नानक साहब के सिख यानी डिसाइपल के रूप में या उनके मानने वाले के रूप में वो मदद खालसा साहब उनसे मांगी थी, तो सिखों ने वो मदद की। तो ये भी एक ऐतिहासिक फैक्ट है। तो टेक्निकली स्पीकिंग
तो उस टाइम ही वो वास्तव में सिख बन चुके थे, चाहे वो उन्होंने कोई वो ना धारण किया हो, लेकिन जब मन से आपने गुरु नानक जी को अपना मान लिया और उसके बाद जो है उस चीज को की मदद आपने ले ली अपने पिताजी की बदला, खून का बदला लेने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी अरदास वहां की गई, प्रार्थना ऐसी की गई, तो ये सारी चीजें भी हैं। तो हमारा वापस लौटने का या कॉम्प्रोमाइज करने का, कुछ नेता जैसे लोग इधर उधर चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सामाजिक मूवमेंट है। कुछ किसी को एमएलए बना दे, कोई एमपी बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज निकल चली है धारा, और ये धारा दोनों मिलेंगी। जो महाराजा सूरजमल जी का सपना था, रणजीत सिंह जी भी चाहते थे, महाराजा रणजीत सिंह जी भी चाहते थे कि भाई आपस में मिल करके सिख और ये सब जो है हिंदू और जाट, हिंदू जाट जो है वो चले। तो ये लंबा प्रोजेक्ट है, समय इसमें लग सकता है, लेकिन अब इसमें कोई वापस लौटने का या शांत होने का सवाल नहीं है। ये धीरे धीरे धारा जो है तेज होती चली जाएगी और आपस में इनका मिलन अवश्य होगा। जी जी ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਟੋਨਮਸ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ 1955 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਨਮਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨਮਸ ਸਟੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਬਣਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 47 ਚ ਤੁਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈडिया क्यों बाय करेंगे? इसमें देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि हिंदुत्ववादी फोर्सेस, संघ की फोर्सेस धीरे धीरे जिस तरीके से बाकी धर्मों को खत्म करती चली जा रही है, अब नंबर 1 टारगेट इनका जो है आज की तारीख में है मुसलमान इस देश के अंदर। अभी इनके तमाम लीडर्स जो हैं, इवन यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी है, उन्होंने नया नारा दे दिया, बटोगे तो कटोगे। ये नारे जो एक सांप्रदायिक कलर के नारे हैं, ये दूसरों को सिग्नल देते हैं कि हम एकजुट हो जाएं और आगे काटने छाटने की जो चीजें हों वो करते चले जाएं। और यहाँ पर आप 35 बनाम 1 जाट गैर जाट का नारा दे रहे हो। महाराष्ट्र में मराठे गैर मराठे, ईस्टर्न यूपी और इसमें यूपी में, बिहार में यादव गैर यादव करते हो। तो ये जो बांटने का काम है ये तो खुद कर रहे हैं। तो हमारा उसके कॉन्ट्रेरी में ये है कि भाई सिख धर्म के ऊपर भी एक बड़ी डिजाइन इनकी है, जैसा आपने खुद कहा कि भाई गुरुमुखी छोड़ दें या और चीजें छोड़ दें, तो धीरे धीरे ये उनको जो है अपने उसमें आगोश में
और उसमें ले लेंगे और इसको एक खतरा पैदा हो सकता है। उस खतरे को बचाने के लिए हिंदू जाटों को और सिखों को एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो हम ऑटोनोमस स्टेट की बात कर रहे हैं, इसको और मैं बता दूं, इसमें हमने ये पंजाब वाला हिस्सा जो पाकिस्तान में पड़ता है या सिंध है, उसको इसलिए जोड़ने की बात की है कि हम ये नहीं कह रहे हम देश को तोड़ रहे हैं। इनका खुद का एक ड्रीम है अखंड भारत का कि भाई भारत से जो हिस्से निकल गए थे वो आ जाएं। अब बिना जाटों के वो हिस्सा बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि पंजाब के हिस्से में जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहां पर भी जो मुस्लिम जाट, जो मुस्लिम कन्वर्ट हमारे जाट भाई हो गए थे, वो वहां पर जो है डोमिनेंट है और उनका वर्चस्व है, उनकी वहां पूरे पाकिस्तान चलती है। अगर वो निर्णय ले लें कि हमें अपने हिंदू और सिख भाइयों के साथ वापस आना है, तो इमीडिएटली ये सब चीजें हो सकती हैं। ये हो सकता है थोड़ा सा उटोपियन लगे या बड़ा आइडिया लगे, लेकिन क्या ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी 50 साल अलग होने के बाद 1990 में एकजुट हो गए? और भी बहुत ऐसे उदाहरण है, क्योंकि ये सारी रेखाएं पॉलिटिकल रेखाएं हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, उससे पहले से यहाँ पर जाट बसे हुए हैं। और ये जाटों को कमजोर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये दो देशों में विभाजित किया गया इनको, और 10-12 सूबों में विभाजित किया गया। 3-4 धर्मों में, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, बिश्नोई जाट भी जो होते हैं ना, बिश्नोई धर्म में भी 80-90% जाट ही है। तो इन तमाम रेखाओं को धीरे धीरे मिटाया जाए। और जो जाटलैंड का है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो पूरा जाटलैंड ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से होगा। उसके अंदर भी छोटे छोटे हिस्से, सब यूनिट्स बनाई जाएंगी, जैसे जो पंजाब वाला हिस्सा है और हरियाणा वाला हिस्सा है, राजस्थान का है, वेस्टर्न यूपी का, ये 4-5 सब यूनिट्स भी उसके अंदर हो सकती हैं। तो गवर्नेंस का स्थानीय जो जातियां प्रमुखता से हैं, वो अपनी लोकल गवर्नेंस वहां कर सकती हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में है। जैसे मैंने आपको बताया बोडोलैंड है, ये है, इस तरह जैसे चाइना है, चाइना में मकाऊ आप चले जाएं या जो है हांगकांग, वो ऑटोनोमस रीजन है। रशिया में जब क्रीमिया है, क्रीमिया ऑटोनोमस रीजन है। इसी तरह नॉर्दर्न आइलैंड है, वो ऑटोनोमस एक रीजन है। तो ऐसे ऑटोनोमस रीजन तमाम देशों के अंदर है, जहां पर एक स्थानीय जाति जो प्रमुखता से रह रही है, उसको गवर्नेंस अलाउ की जाती है। इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। तो ये हमने इसलिए कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई हमें अपनी धर्म की रक्षा, अपनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे हितों की रक्षा। अब कल कोई हमारी जमीनें अडानी को देना शुरू कर दे, हमें हमारी एक्वायर करना शुरू कर दें, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये जमीनें जो है सबसे बढ़िया जमीनें हैं पूरे वर्ल्ड में। 7 नदियां यहाँ से गुजरती हैं, गंगा जमुना के बीच में हम रहते हैं, और उधर पंजाब तक सारी सारी सिंधु नदी तक। तो ये सारा का सारा जो एरिया है, ये एकजुट हो जाए तो ये बहुत ही पावरफुल भी होगा और देश की सुरक्षा के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर्स में अगर पंजाब का हिस्सा, सिंध का हिस्सा अपने साथ जुड़ जाता है, तो वो समस्या जो पाकिस्तान वाली रहती है, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि उसमें बलोचिस्तान है या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वो अपना अपना अलग अलग देश बन जाए और कश्मीर का भी हल निकल आता है। तो ये आइडियाज की शुरुआत है, एक आइडिया और एक विजनरी चीज है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा भाई हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए थे तो पूरा एकजुट था, लेकिन क्या उसमें से पाकिस्तान नहीं बना? क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर के बांग्लादेश अलग देश नहीं बना? तो ये चीजें होती रही हैं इतिहास के अंदर। तो इसको असंभव मानना या वैसा मानना, लेकिन अब जितना गला दबाया जा रहा है, चाहे सिखों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, इवन दलितों का भी, दलित भी हमारे साथ रहेंगे। दलित भाई जो है, उनका अभी आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि इन्होंने सब क्लासिफिकेशन कर दिया है आरक्षण का। आरक्षण उनका छीनना चाहते हैं ये लोग। तो वो सारी चीजें खत्म करने के लिए यही है कि मेरी बात लगातार इस्लामिक स्कॉलर्स से, इस्लामिक जो मौलाना है उनसे भी चल रही है। उनका कहना है भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसको एकजुट आप कर लीजिए। भाई आज की तारीख में अफगान की अब्दाली वाली फोर्सेस तो बची नहीं, और जो रोहिलखंड की जो फोर्सेस थी, मुस्लिम्स थे, वो भी अब अपने साथ हैं, और दलित अपने साथ हैं, सिख भाई अपने साथ हैं, जाट अपने साथ हैं। तो ये चारों फोर्सेस अगर मिल जाए तो ये बहुत बड़ा जो है एक मूवमेंट खड़ा हो सकता है, और जाटलैंड बन भी सकता है, अच्छी तरह गवर्न भी हो सकता है। उसमें सिख भाइयों की, मुसलमानों की, दलितों की और हिंदू जाटों की सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब जगह उनको हिस्सेदारी दी जाएगी। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है जो मुझे दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट शुरुआत है, और आने वाले समय में यदि हमने इसको अडॉप्ट किया तो ये बहुत बढ़िया कदम जो है तमाम बिरादरियों के लिए होगा। जी ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚੱਲਿਆ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 1984 ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਫੇਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो जिस दिन सब जाटों को यहाँ समझ में आ गया, चाहे वो वेस्टर्न यूपी का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो या पाकिस्तान के पार्ट जो पंजाब है, सिंध है, कि हम एक खून है भाई, हमारा जो है विरासत एक है, हमारे पुरखे एक हैं। बाद में हमें जो है देशों में बांटा गया या धर्मों में अलग अलग में हम चले गए। तो अब अगर हम एक दूसरे की सुरक्षा करनी है और अपनी नस्ल को बचाना है, और जिस तरीके से नस्लीय भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, सिखों के साथ खालिस्तानी बोल करके और हिंदू जाटों को अलग तरीके से उत्पीड़न करके, जैसा मैंने अभी एक आपको वीडियो भी दिखाया, तो ये सब चीजें तभी खत्म हो सकती है जब हम एक दूसरे की सुरक्षा का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था एक तरीके से महाराजा सूरजमल जी ने, कि सिख फोर्सेस और हिंदू जाटों की फोर्सेस जब एकजुट हो जाएंगी तो दोनों को जो है जो भी अटैक करेगा वो उसको सामना मजबूती से किया जा सकता है। ये उनका ब्लूप्रिंट है, ये कोई मेरा नया ब्लूप्रिंट नहीं है, ये वहीं से चीजें चली आ रही हैं। हालांकि मैंने इनको बाद में स्टडी किया, मैंने इंडिपेंडेंटली जो 3R वाली थ्योरी लिखी कि वे रेस, रीजन और रिलीजन के अकॉर्डिंगली हम लोग एकजुट हो जाएं और एक अपना जाटलैंड मांगे। धरती पर एक तरह के लोग अपना एक अलग सूबा मांग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तमाम तरह के सूबे हैं यहाँ पर जो है, चाहे देश में हो या पूरे वर्ल्ड में हो, तो सबको एकजुट होकर के, और जब ये पूरा एरिया एकजुट हो जाता है तो फिर कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। सिखों के साथ कोई जैसा 1984 में हुआ ऐसा कोई संभव नहीं है यदि जाट खड़े हो जाए। मुसलमानों को हाथ लगाने की कोई किसी की ताकत नहीं है। अभी मैंने कहा था पिछले दिनों, और इंडिया इस्लामिक सेंटर में भी अपनी स्पीच में कहा था, योगी जी ने एक बयान दिया था पीछे दिनों कि भाई जैसा अयोध्या में हुआ था वैसा मथुरा काशी में होगा। हमने कहा था योगी जी, मथुरा जो है वो जाटलैंड का हिस्सा है, और जाटलैंड में हम एक सुई भी मुस्लिम भाई के हाथ से छीनने नहीं देंगे, एक सुई भी। ये बात हमने कही है, और मुसलमानों ने इस बात को बड़ा, क्योंकि मुसलमान सबसे ज्यादा आज की तारीख में थ्रेटन्ड है इस देश के अंदर, और बटोगे तो कटोगे का नारा जो है वो चलता चला जाएगा, ये रोज बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि इनको वोट मिलती है उसके हिसाब से। वो उसको नहीं छोड़ने वाले कि मुसलमान को टारगेट करें या सिख को टारगेट करें या जाटों को टारगेट करें। तो ये टारगेटिंग इनकी चलेगी। इसके खिलाफ एक ही तरीका है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों जो है धर्मों के बिश्नोई जाट एकजुट हो, सिखों के साथ अपना एका बनाए, मुसलमानों के साथ एका बनाए और दलित भाइयों के साथ एका बनाए। गुजर भाई भी हमारे साथ रहेंगे, गुजर भी हमारे भाई हैं बिल्कुल। गुजरों के इन्होंने 70-72 बंदे मार दिए थे पीछे जो आरक्षण का 7-8 में 2007-8 में आंदोलन हुआ था राजस्थान में। अरे भाई, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है या तो उसकी मांग हल करो, या आप उसको ट्रैक पे बैठ गया तो आप गोली से मार दोगे। हमारे भी 2.5 दर्जन बच्चे जो है यहाँ पर हरियाणा में मार दिए थे। तो ये तो बंदूक से हमारी नस्लों को भी समाप्त करना चाहते हैं, हमारी जमीनें छीनना चाहते हैं, हमारा वर्चस्व समाप्त करके अपना हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदूवादी झंडा लहराना चाहते हैं, इस देश के अंदर सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। तो उसका जवाब जाटलैंड ही है। जाटलैंड में सिख भी सुरक्षित रहे, मुसलमान भाई भी सुरक्षित रहे, जाट भी सुरक्षित रहे, और जाट धीरे धीरे मूवमेंट करें, जो हिंदू जाट है वो सिखिज्म की तरफ, और दलित भाई भी हमारे सुरक्षित रहे, गुजर भाई भी, उनको अगर एसटी का स्टेटस चाहिए तो वो दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें लेकर के हम साथ चल रहे हैं जी। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ, ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਰੋਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ हरियाणा का, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने बहुत क्लियर कह दिया है अपने यूथ को कि हिंदू मुसलमान की या और कोई हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट की कोई हिंसात्मक कार्रवाई जो ये अन्य बिरादरियों के खिलाफ करते हैं, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ करें या सिखों के खिलाफ करें, इसमें आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। कनाडा में भी अब जो ये 10 तारीख को ये मीटिंग हुई थी अभी रोहतक में, ये कनाडा वाले इशू के ऊपर ही हुई थी। उसमें भी हमने अपने बच्चों को संदेश भी दिया है। खाप चौधरी भी वहां मौजूद थे, सिख लीडरशिप भी वहां मौजूद थी, हम लोग भी वहां थे, तो उसमें भी हमने कहा है कि भैया ये तो आपको लड़ाने का काम वहां तक कर रहे हैं, कनाडा तक कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कंधा है अपना, ना इनके पास बंदूक है। ये केवल कंधा भी आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, बंदूक भी आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हम ये भी उनसे कह रहे हैं कि मुसलमान भी इतने कमजोर नहीं है। मुसलमानों को भय रहता है कि ये बाकी लोग आकर के इन हिंदुत्ववादी फोर्सेस को बचा लेंगे। इसका भी संदेश हमने बहुत स्पष्ट दे दिया है और आपके चैनल पे भी दे रहा हूं कि देखिए, मुसलमान अगर इनसे, मुसलमानों का अभी नूह जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है, वहां पर झगड़ा हुआ था, नूह के दंगे हुए थे, उसमें ये हिंदुत्ववादी फोर्सेस भाग गए थे, क्योंकि और चिल्लाते हुए भागे कि साहब आओ जाटो हमें बचाओ और यहाँ पर अटैक हो रहा है हिंदुत्व के ऊपर। हमने कहा भाई नमस्कार, आपने तो पहले ही हमें 35 बनाम 1 और जाट गैर जाट करके हिंदू धर्म से अलग किया हुआ है, हम तुम्हारा ये रक्षा करने के लिए क्यों आए? और ये चप्पल तक वहां छोड़ करके भागे थे, चप्पल भी नहीं उठा पाए थे। तो अगर कहीं जाट है या गुजर है या बाकी फोर्सेज हैं, वो इन हिंदुत्ववादी फोर्सेज का साथ ना दें, तो मुसलमान इस देश का सक्षम है अपने आप इनसे निपटने के लिए। मुसलमान तो इनको वो हाल कर देगा कि जो ये सोच नहीं सकते। उनको भय रहता है कि भाई ठीक है, ये बाकी लोग भी आ जाएंगे। तो आज हम कह रहे हैं कि मुसलमानों की, और अगर इनकी लड़ाई होती है तो मुसलमानों के साथ हम खड़े होंगे, और मुसलमानों के खिलाफ हमारे बच्चों का इस्तेमाल ये नहीं कर पाएंगे। ये संदेश कम से कम जाटलैंड में हमने दे दिया है। यादव भी अपने यहाँ ये निश्चय कर लें और मराठे भी निश्चय कर लें, गुजर भी निश्चय कर लें, तो निश्चित रूप से इनका सारा का सारा हिंदुत्व का प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। और मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि हिंदुत्व के, इनके संगियों के हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को जाटलैंड में ही हमने दफन करना है। और उसके लिए सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को, जाटों को, मुसलमानों को, दलितों को, गुजरों को एक साथ आ जाना चाहिए। तब इनका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और बिल्कुल देश में शांति कायम हो जाएगी। जो ये मार मार के, काट काट के और इस तरीके से हरकतें और इससे बयानबाजी करके वोट ले रहे हैं बांट बांट के सारे समाज को, ये खत्म करने के लिए जाटलैंड बहुत ज्यादा जरूरी कदम है। जी ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।